सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं एच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हम पहुंचे हुए हैं लुधियाना में और हमारे साथ हैं पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशू। आशू जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ जी। बहुत धन्यवाद जी। सर, चोण जाब्ता लग गया है, किन्ने ਤਿਆਰ ਹੋ? पूरी तैयारी है। तैयारी ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। क्योंकि मिनिस्टर करके ना सर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भाई आपको सिर्फ अपने इलाके का नहीं, पूरे पंजाब को लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि 5 साल में ऐसा किया जिसके नाम पर वोट मिले। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਖੂਬੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇ ਨਾ। सर लेकिन एक सवाल है, 5 साल के नाम पे वोट लोगे या नई सरकार जी बनी है 100 दिन के कम ते वोट लेनी है? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ B ਟੀਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟੈਰਿਫ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, 2-2, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿਲਾਣੀ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾਲ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ है। टाइम थोड़ा सी, लेकिन आखिरी 2 ओवर 2020 में कितने रन मारे हुए आप? वो मारने की कोशिश तो की। अब टेस्ट मैच जब कन्वर्ट हो जाता है 2020 में तो फिर वो खेलना भी वैसे ही चाहिए। इन फाइटिंग पे बहुत सवाल हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ करना चाहती है लेकिन संगठन है वो सवाल उठा देता है। प्रधान साहब बार बार नाराज हो जाते हैं। मैसेज ठीक जा रहा है वर्कर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सभी लीडर इकट्ठे हों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छी लीडरशिप दें तो कन्फ्यूजन वर्कर में भी नहीं रहती और इलेक्टोरेट में भी नहीं रहती, और जो लोग वोट डालना चाह रहे हैं उनको भी कन्फ्यूजन नहीं रहती। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਦਿਖੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। लेकिन सर एज ए सीनियर लीडर, एज ए मिनिस्टर,
ये सारी चीज़ अवॉइड हो सकती थी। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਈਗੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੌੜੋ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਢੂੰਢੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ एडमायर करते हैं। जब हम लुधियाना में आए सर, हमने देखा बोर्ड लगे हैं आशु मैन ऑफ प्रॉमिस। इस पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए कि क्या कोई और लीडर है नहीं लुधियाना में। नहीं ऐसा नहीं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में बोर्ड लगा है। जो लुधियाना के दूसरे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलएज हैं, उनके इलाके में उनके बोर्ड लगे हुए हैं। उस पर सवाल ये उठा था भी इसमें सिंबल क्यों नहीं है। सिंबल जब हम इलेक्शन में जाते हैं ना तकरीबन तभी आता है। आप अब तो कोड लग गया, सब उतर गए होंगे। अगर आप देखते हमारे सीएम साहब के जो लगे हुए थे बोर्ड, उसके ऊपर भी सिंबल नहीं था। वो लिखा होता है, उनकी साथ में जो उन्होंने काम किए होते हैं वो शो किए जाते हैं। ऐसे ही मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरे फ़ोटो के पीछे लोगों ने लगाए और मैन ऑफ प्रॉमिस है तो अगर प्रॉमिस किया है तो वो पूरा किया जा रहा है, वो बताया गया। अब इसको इशू आप लोग बना दो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल एक ये है कि क्या आपको ये इलेक्शन टफ लग रहा है? पहले बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस और अकाली दल के बीच फाइट होती थी, बीजेपी कैप्टन एक मोर्चा बन गया है, आम आदमी पार्टी पूरा प्रेशर लगा रही है, किसान बीच में उतर आए हैं, ये बहुत टफ इलेक्शन है क्या? कंफ्यूज्ड इलेक्शन है बट टफ नहीं है। जिन्होंने काम किया है, जिनको लगता है लोग उनके कामों को सराहेंगे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। चन्नी साहब ने जिस तरीके 3 महीने में अपने 3.5 महीने में परफॉर्म करके दिखाया, हमें उतनी उम्मीदें ज़्यादा बंधी हैं। आम लोगों के साथ हमारा कनेक्ट बना है जो कहीं ना कहीं मिस हो गया था। और जैसे वो अपनी लीडरशिप दे रहे हैं टाइम टू टाइम हर इश्यूज़ के ऊपर, तो हमें लगता है अभी आने वाले टाइम में ये इलेक्शन एक तरफा होता जाएगा। वोट डिवाइड होगा सर? ये तो रहता है पर कंसोलिडेट भी होगा साथ में। एक बात है जिस पर आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी है एज ए मिनिस्टर भी, ये जो प्राइम मिनिस्टर आए, ये जो 5 जनवरी का वाकया हुआ जी, इस पर हर तरह की बात हो रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था? बचा जा सकता था पर कंट्रोवर्सी क्रिएट किसने की इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो हिंदुस्तान का होता है। हमारी शान है प्रधानमंत्री, वैसे ही हमारी शान हमारा चीफ मिनिस्टर भी है। अगर प्रधानमंत्री को कहीं कोई मुश्किल आई तो ये कहना भी अच्छा है भी अपने चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देना, मैं बच के निकल गया। कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट था, लैप्सेस थे, थ्रेट कहाँ था। बात को ट्विस्ट करना और उसको बाद उसको फैलाना, मीडिया का सहारा लेके ऐसे प्रोजेक्ट करना। हम कभी कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने पहले ये तो बोला नहीं भी रैली फेल हो रही है इसलिए वो बहाना बना के जा रहे हैं, ये किसी ने नहीं बोला। ये हर चीज़ हमारी, जैसे प्रधानमंत्री शान है वैसे हमारा सीएम भी शान है। क्योंकि जाखड़ साहब ने भी ये कहा कि ये उनको जाने मतलब वहां तक पहुंचना चाहिए था। पहुंचना कौन रोक रहा था साहब? कोई अगर कहीं बीच में आपको लगता है भी कोई ना कोई मुश्किल आ गई, आप रूल बुक की बातें करते हो, आप कानून की बातें करते हो, एसपीजी का उसमें क्या ड्यूटी होनी चाहिए थी, आईबी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसीज हैं उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, आपने रूल बुक देखी? साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बाय रोड लंबा सफर नहीं कर सकते। क्यों निकले भैया? वो कह रहे हैं कि डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल दिया तब आगे बढ़े। सब कहाँ दिया? मेरे को नहीं दिया। फिर उस डीजी को पकड़ लो, फिर उसमें सीएम का नाम कहाँ से आया?
साहब ये बातें आप इसी बात को पॉलिटिकली ऐसे फैला रहे हो जिसमें हमें पंजाब और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश हो, ये अच्छी बातें नहीं। मैं सबसे ज़्यादा एडमायरर हूँ प्रधानमंत्री जी का, उनको जरूर पहुँचना चाहिए था। अगर वहाँ पहुँचे होते, कुर्सियाँ खाली होती, तो आज बात क्या होती साहब। उस चीज़ को बदलने के लिए, उससे बचने के लिए अब क्या बना दिया। ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए, ये राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम इज्जत करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस चेयर की इज्जत है जो हमारे देश की शान है, तो उसमें ये बदमज़गी वाली बातें होनी नहीं चाहिए। एक सवाल, क्योंकि मंत्रालय आपने सब कुछ देखा है, ये जो फ्रीबीज चल चुका है, कोई 1000 फ्री देना चाहता है, कोई 2000 रुपये फ्री देना चाहता है, ये मॉडल क्या सक्सेसफुल है? क्या ये स्टेट को, वेलफेयर स्टेट को नुकसान पहुंचाता है? काफ़ी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो अवॉइड करनी चाहिए, पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचनी भी चाहिए। आज ज़रूरत है कहीं ना कहीं हमें महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर बिजली के टैरिफ हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैं तो उनको रीज़नेबल करने के लिए सोचना भी चाहिए। अगर पानी जो बेसिक ज़रूरत है हर आदमी की, हर बशिंदे की, तो अगर उसको वो महंगा मिल रहा है तो उसके बारे में सोचना भी चाहिए। ये चीज़ें की है, रैशनल किया है, सबको घटाया गया है। फ्री बीज के बारे में तो कुछ ऐसी बातें नहीं है, फिर वो लग जाते हैं दूसरी पार्टी वाले भी, ये कर रहे हैं तो हम ये करके दिखाएंगे, तो वो दौड़ सी चली जाती है आगे, जो स्टेट की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हिट भी कर सकती हैं। पर अभी तक जो चीज़ें की गई हैं इस सरकार द्वारा, वो अपनी जो हमारी फाइनेंसेस हैं उसके हालात के मुताबिक ही किया गया है। सर, फाइट किससे है पूरे इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी से है या अकाली दल से? इलेक्शन बन रहा है, किससे फाइट होती है वो देखा जाएगा। पर आज की तारीख में मैं बोलूं, कांग्रेस की फाइट हमेशा कांग्रेस से रहेगी। कांग्रेस ने जो 2017 में परफॉर्म किया था, कोशिश ये रहेगी भी उसको बीट करे। ये होगा कैसे? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो इन फाइटिंग, जो चेहरों का जाना, सिटिंग एमएलए छोड़ कर गए, परसेप्शन खराब हुआ। सिटिंग एमएलए तो वापस आ गए भैया, एक ही तो है सर। हाँ, तो बाकी कौन बचे जिनकी टिकटें कट रही हैं? अभी तो और कटेंगी तो और भी जा सकते हैं। तो उसका एमएलए का मैं आपको पहले बोल चुका हूँ भी, एमएलए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करता है जब छोड़ के जाता है। उसको अपना संगठन में काम देखना चाहिए, पार्टी उसके पोटेंशियल को कहाँ यूज करती है ये हमेशा से रहता है। पर जैसे जैसे पार्टी डिल्यूट होती जाती, मेरे बारे में आप पूछ रहे हो ये क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। अरे जिस दिन मेरे को बोलेंगे भी आपने नहीं लड़ना, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, या संगठन में काम करूंगा, या घर पे बैठूंगा। ऐसे नहीं होता। ये हमारी भी जिम्मेवारी है सोसाइटी की तरफ कुछ ना कुछ। कांग्रेस कल्चर बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है। ये तो आप समझिए बातों को, मैं बोल रहा हूँ भी, मैं अगर कहीं ना कहीं लोग मेरे को समझेंगे भी मैं परफॉर्मर नहीं हूँ या मैं कलंकी हो गया हूँ, तो मेरे को हटाओ, मेरे को संगठन में लगाओ, पर मैं कहीं जाने वाला नहीं। जो लोग सर पार्टी छोड़ जाते हैं कि भाई अब जैसे कहते हैं मिनिस्टर भी जाने वाले हैं, वो तरह तरह की बातें होती हैं, इलेक्शन टाइम में परसेप्शन कुछ बनता है क्या पब्लिक में? अब पब्लिक कैसे सोचती है, मैं तो ये सोचता हूँ भी वो आदमी जो जा रहा है, अगर पार्टी ने देखा भी कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे कोई कमी है, या ऐसा माहौल बन चुका है लोग उसको नहीं चाह रहे, तो उसको पार्टी के साथ रहना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी के साथ रहना चाहिए। बहुत चीज़ें होती हैं काम करने के लिए, अगर आप पार्टी और लोगों के लिए काम करना चाहते हो तो आपको जिम्मेवारियां मिलती रहेंगी। एक सवाल जो मुझसे कहा गया सोशल मीडिया पर कि मैं आपसे पूछूं, भारत भूषण आशु को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा किसके ऊपर आता है? कभी कभी कह देते हैं कि आशु साहब जल्दी नाराज हो जाते हैं। जल्दी नाराज नहीं होते, गुस्सा उसके ऊपर करता हूँ जो काम नहीं करता, जो इस ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं करता, जो मोहल्ले में कोई लड़ाई क्रिएट करे उसको डांटना अगर गुस्सा है तो वो देखो, आप लोग दिखाते हो भी आपको घंटी बजानी चाहिए, कहीं गलत हो रहा है तो घंटी बजानी चाहिए। ये गलत क्यों हुआ, सोसाइटी डिल्यूट क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने कहना बंद कर दिया भी दोनों झगड़ रहे हैं, मैं उसके लिए भी नाराजगी का कारण न बनूं। आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, गलत को गलत कहना पड़ेगा भैया। तभी हम किसी जिम्मेवार ओहदे पे हैं तो ये सोचे बगैर भी यहाँ मेरी बदनामी होगी या मेरे से कोई नाराज होगा, गलत को गलत बोलो। तो मैं तो वो ही बोलता हूँ, और मैं ये कहता भी हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को भी बोलो। तो अगर लोग बोलते हैं गलत, मैं सुनता हूँ उनकी बात, अगर मैं कहीं समझ लूँ भी हाँ वाकई मेरी गलती है तो मैं मान भी लेता हूँ।
पर अगर ये सोचो कि मैं जिम्मेवारी के किसी ओहदे पे बैठ के बोलूं ही ना, डम बन के बैठ जाऊं भी, मेरे से कोई नाराज हो जाए तो फिर मैं अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहा। चलिए सर, अंत में, क्योंकि मान लीजिए दोबारा सरकार आती है, आपको फिर से मौका मिलता है, भारत भूषण आशु क्या प्राथमिकताएं होंगी जो लुधियाना के लिए वो करना चाहते हैं, कुछ काम जो पेंडिंग वो निपटाना चाहते हैं? मेरे काम चल रहे हैं, लोग जानते हैं, उसको और स्पीड अप करेंगे और जो प्लानिंग कर रखी है अपने शहर के लिए उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, MH1 प्राइम पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।